Okay. Good afternoon. Myself Ashwini Gupta. Once again, we are here to discuss about the concepts of physics for class 10th. As in previous lecture, we were talking about some of the basic concept like electric charge, electric potential and potential difference. ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इनके बारे में कि what is an electric charge. So what we discussed, the electric charge, and electric charge is what? It is a physical property of matter which causes the matter, the body, to experience a force of attraction or repulsion in a electromagnetic field, EM field, right? After that we have discussed about electric potential, potential difference. So what was the electric potential? Basically the work done to bring a charge from infinite to a place in a region of another electric charge. इसी तरह हमने potential difference देखा था. Now today what we are going to discuss, we will discuss about the electric current. Now how the electric current flows and what is electric current, हमें ये जानना है. हम आज ये जानेंगे कि what is an electric current and how does the current flows. So before that we should know about when we have discussed about the potential difference, तो हमें पता होना चाहिए कि potential difference real life में हमें कैसे मिलेगा. So for that देखिए potential difference create करने का reason है, potential difference होने का reason है करंट के फ्लो होने के पीछे के मैकेनिज्म में, ठीक है. अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा अगर कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. सो देयर आर टू थिंग्स बाय विच वी सी द पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ के थ्रू हम पोटेंशियल और जिनसे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है. फर्स्ट इज सेल एंड अनदर इज बैटरी. ओके, नाउ सेल, इफ वी सी व्हाट इज सेल, बेसिकली सेल हैव टू एनोड्स, वन एनोड एंड वन कैथोड, जैसे आप इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं. आप मार्केट में जाएं तो हमें मार्केट में जो सेल मार्केट में अवेलेबल है 1.5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की जो बैटरी आप कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में बैटरी, बट आप जाएं मार्केट में आप कहते हैं ना सेल दीजिएगा, घड़ी की सेल या रिमोट की सेल. तो इंडिविजुअल अगर आप एक सेल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज सेल. A cell has two terminals, one is a positive terminal, another as a negative terminal. ठीक है. These differences in the terminal causes the potential difference. Now what will happen? We have a lot of electrical appliances which work on high voltages, high potentials. Like suppose the cell is of 1.5 volt, and we have some component, we have some equipment that वर्क्स ऑन 9 वोल्ट. कितने पे काम करता है? 9 वोल्ट पे काम करता है. सेल हमारे पास 1.5 वोल्ट का है और हमारा जो एपरेटस है, हमारा जो इक्विपमेंट है वो 9 वोल्ट पे काम करता है. हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे ही 4 सेल यूज़ करने होंगे. क्या करेंगे हम? 4 सेल यूज़ करेंगे ना भाई. एक सेल, फिर इसके पीछे हमने दूसरा सेल लगा दिया, फिर हमने एक तीसरा सेल लगा दिया, फिर हमने एक चौथा सेल लगा दिया. ठीक है. नाउ दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. 1.45 वोल्ट यहाँ, 1.5 वोल्ट यहाँ, 1.5 वोल्ट यहाँ, 1.5 वोल्ट यहाँ. अभी कितना हुआ? ये हमारा 6 वोल्ट हुआ. हमें 2 सेल्स और लगानी होंगी. अगर हमें 9 वोल्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे फिर एक लगाया और फिर हमने एक सेल लगा दिया. 1.5 वोल्ट ये हो गया, 1.5 वोल्ट ये हो गया. तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो इट विल बी 9 वोल्ट. सो व्हाट वी हैव डन, बेसिकली वी हैव कनेक्टेड द सेल इन ग्रुप, एंड व्हेनेवर वी assemble these cells in this manner in this group, then this whole structure is converted and it is known as battery. ये क्या कहलाएगा? अब यह बैटरी कहलाएगा. This is known as battery. So what is the difference between cell and battery is cell, there is one anode and there is one cathode which causes the potential difference and becomes the cause of flow of current. But to increase the potential difference, what we have to do, we have to
add more cells in a particular format. It may be in series combination, it may be in parallel combination, it may be in mixed combination as per of our requirement, as per of our need. So here as an example, for 9 volt we have created a series combination of cells. We have chosen 6 different cell having 1.5 volt individual, so the total voltage become, a total potential becomes 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5, and that gives 9 volt, right? So this is the basic difference between cell and battery. Now coming to the main topic, that is electric current, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. Now होता क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो पहले हम डिफिनीशन पे बात करेंगे और उसके बाद हम कैसे फ्लो होता है हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट इज़ नोन एज चार्ज, राइट? नाउ सी व्हाट विल हैपन व्हेन दिस चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग. चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. चार्ज इज मूविंग. देन व्हाट विल हैपन? अ बिग क्वेश्चन इज हियर. इफ द चार्ज इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन? भाई पोटेंशियल में हमने देखा कि देयर वाज अ चार्ज. अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर आप ऐसे दिखाते हैं इसके इलेक्ट्रिक लाइंस. अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको इनवर्ट दिखाते हैं, लाइक दिस वन. अब ये चार्ज ना ये मूव कर रहा है, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग देन द प्रॉपर्टीज, देन द कंडीशंस बिकम डिफरेंट. एंड नाउ व्हाट द कंडीशन इज, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. ठीक है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. देखिए जब भी आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी आप रेट देखें तो रेट का मतलब समझ जाए कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. Wherever you see rate of change, rate of flow, ठीक है? So in physics definitely it will be related to the time. So if the charge is represented by capital Q, if the charge is represented by capital Q, so what is the electric current? It will be delta Q upon delta T. और अगर हम बहुत कम समय के लिए बात करते हैं मिनिमम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड इट बिकम्स डी क्यू अपॉन डी टी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई आई, एंड आई इज व्हाट? डी क्यू अपॉन dt. I is, that is I is equal to dq upon dt, that is rate of flow of charge. हिंदी में अगर आप बात कर रहे हैं तो आवेश के प्रवाह की दर. By what quantity the charge is moving in particular direction, that is known as electric current. अब अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट ऑफ करंट की, करंट किस यूनिट में मेज़र होगा, तो देखिए करंट की यूनिट क्या हो जाएगी समझिएगा. चार्ज को मेज़र करते हैं किस में? हम कूलम्ब में. टाइम को मेज़र करते हैं किस में? हम सेकंड में. तो यहाँ से यूनिट क्या आ गया हमारे पास? कूलम्ब पर सेकंड. ठीक है? एंड दिस यूनिट इज नोन एज एम्पियर.
दिस इज नोन एज एम्पियर। तो यूनिट ऑफ करंट बिकम्स एम्पियर। तो अगर अब आप कहीं देखें, आपसे कोई पूछे कि 5 एम्पियर क्या डिनोट करता है, एंड द ऑप्शंस आर गिवन, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, तो आपका आंसर क्या होगा? एम्पियर देखते ही समझ जाइए कि वो क्या शो कर रहा है, वो करंट को शो कर रहा है। क्लियर है? नाउ आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि करंट फ्लो कैसे करती है। इसके बाद हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए समझते हैं। चलिए देखिए, what happens basically, what is the mechanism of flow of current? Suppose we have chosen a conductor material. कंडक्टर आपको पहले पता होगा कि मेटल्स 3 पार्ट्स में होते हैं कंडक्टर, विच फ्लो द फ्लो ऑफ करंट, इन विच करंट कैन ईजिली फ्लो. Insulators, those in which the current can never flow, or you can say which of do not support the flow of current, those are known as insulators. And semiconductors, having their conductivity between कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हम उस पर डिस्कस बाद में डिटेल में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं केवल मैकेनिज्म, दैट इज़ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन द कंडक्टर्स. So suppose we have, in the first case what we did, we have chosen a conductor material in which the free electrons are like this one as shown in the diagram. इनके टर्मिनल्स कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये फ्री है. Now as we know in conductor we have free electron, हमें पता होता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होगा. जैसे अगर आपके घर में किसी दिन आपके मम्मी पापा बाहर चले जाएं तो आप 2 भाई बहन हैं तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं. कोई किचन में जाके मैंगो शेक बना रहा होता है, कोई जाके कार्टून देख रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई खेल रहा होता है. दैट मीन्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, आप वो करते हैं बिकॉज ऑफ आपके ऊपर कोई एक डर या कोई एक प्रेशर पेरेंट का नहीं है. एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर ये कंडक्टर फ्री स्टेट में रखा हुआ है. यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इनके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है. दैट इज़ वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन जिगजैग मोशन. सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउनवर्ड, सम इलेक्ट्रॉन इन मूविंग सम अपवर्ड. आप देखें हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ठीक है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव. इनके ऊपर कोई एक पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है कि ये एक डायरेक्शन में जाएंगे. एंड व्हेन दे आर फ्री टू मूव तो इनका जो रिजल्टेंट सम आता है सारे इलेक्ट्रॉन का, अगर हम एल्जेब्रिक सम करें, रिजल्टेंट देखें तो नेट वैल्यू क्या हो जाती है? 0. और यही रीज़न है कि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए भी उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता जब तक कि आप उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल अप्लाई ना कर दें. This is the reason why the conductor, there is no current in a conductor which is kept in a free state, which is not connected with the potential. यही रीज़न है कि यहाँ पर आपको नेट करंट 0 मिलती है. आपसे कोई पूछे कि क्यों 0 मिलती है, there will be only one answer, because in this case the electrons are free to move any direction, so the resultant of all the electrons becomes 0. So the net velocity is 0, that means there will be no current. Now coming to the second figure. अब इमेजिन करो कि आप खेल कूद कर रहे थे, अचानक से आपके पेरेंट्स आ गए. नाउ दिस इज़ योर पेरेंट बेसिकली. और जैसे ही पेरेंट आ गए तो आप पढ़ने बैठ गए. वाई? क्योंकि आपके ऊपर एक पोटेंशियल लगा हुआ है, नहीं पढ़ोगे तो मार पड़ेगी. ठीक है. सो एज सुन एज वी हैव कनेक्टेड अ पोटेंशियल, अ बैटरी हैविंग प्लस टर्मिनल एट one end, another terminal that is negative terminal at another end. Now what will happen? Let us see. This is a plus terminal. अब अगर ये प्लस है तो ये करेगा क्या? It will attract the electrons. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? आप सोचो. इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज. कैसा है ये?
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, एक निगेटिव चार्ज है। टर्मिनल कैसा है बैटरी का, दैट इज प्लस एंड दैट इज माइनस। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये 12th तक आपको काम आने वाला है और हायर एजुकेशन में भी जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स तो वहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन खुद में एक निगेटिव है और ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एक निगेटिव कहाँ हो गया, एक निगेटिव अट्रैक्ट होगा किधर, पॉजिटिव की ओर। हमेशा याद रखिए एक लाइन की डेफिनेशन है, सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके रियल लाइफ में भी सेट करता है, आप रियल लाइफ के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। हमेशा सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम पोल्स रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। बस ये चीज़ याद रखेंगे आप, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल, इन द सेम मैनर द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, अब ये जो जिगजैग मोशन था ना इलेक्ट्रॉन्स का, रैंडम मोशन, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन की ओर आना शुरू हो जाएंगे। मजबूरी है इनकी, फ्री में नहीं कर रहे हैं, मजबूर है ये, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल लगा हुआ है। सो राइट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, तो अब यहाँ पे नेट स्पीड क्या होगी, इट विल बी नॉन जीरो। नेट स्पीड अब कुछ मिलेगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हैं। सो मैंने एक आपको फाइनल रिजल्टेंट डायरेक्शन दिखाई है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इसके अपोजिट में क्या होती है, करंट होती है, दिस इज आई। अगर ये हम वोल्टेज भी दिखा दें तो द करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उल्टा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लेकिन करंट मूव करेगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपोजिट क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा किधर, पॉजिटिव की ओर, और करंट मूव करेगा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। और जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट किया गया है, ठीक है। दिस स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन they are connected with a potential difference V. Now these electrons will start moving in particular direction, that is toward the positive terminal of the battery, and the velocity by which they are flowing, this is known as drift velocity, and the direction of current will be opposite to the flow of electrons, ठीक है। This is about the mechanism of flow of electric current. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद सेल और बैटरी का, एंड हाउ द करंट फ्लोज एंड व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझें, इन्हें जानें। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका इसके आगे आएगा। वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।